Guys, welcome to Weekly Shenanigan. This is going to be the first episode of Weekly Shenanigan. Why it started was it started for rewinding a weekly bakchodi that happens in the political atmosphere. Moreover, it is like venting out my frustration, and that by whatever that is happening in current scenario of politics or geopolitics or whatever. And to highlight the how insignificant we are and how insignificant our views are. So welcome, बने रहिए. And I suddenly remembered case Tuesday, and it has to happen on every Saturday. I think I don't have much of time, but pardon me. I'll make sure it comes on time for your informed entertainment. So please bear with me. First and foremost that comes into mind was Samay Raina controversy. His comedy life was uploaded into YouTube. In one of his remarks he said कि you fight when fight is fair or you fuck away from there. मेरे हिसाब से you should, if it is such, you should tell that to Vietnam, you should tell that to Cuba, you should whatever that is, leave those foreign things. You should tell those to जितने भी फॉरेन मिलिशिया यहाँ पे जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए, द इंडियन whoever were ruling the empire in India, they fought hard. If they would have thought that fight is, you have only to fight when fight is fair, they would have not been alive to watch this scenario. So you should tell that to क्या कहते हैं Che Guevara stood up in the UNGA assembly and he denounced the US imperialism, defending the Cuban revolution, and concluded with a famous declaration patria o matre, homeland or death, जिसको हम लोग हिंदी में भी कहते हैं वीर भोग की वसुंधरा. जो वीर है वह इस धरती की जितनी अच्छी चीज़ें हैं उसके भोग के लायक है. You don't fight because fight is fair. You fight because that's your dharma. That is the only thing you can do, and that's what you are supposed to do. You need to fight. You need to fight for your land. You need to fight for your motherland. You need to fight for yourself. Imagine if a foreign militia invade you. कोई foreign militia आता है, invade करता है, and you have nowhere to run. You have nowhere to run. What will happen in that case? Either you will die, or they will impose something. कुछ ऐसा चीज़ impose कर देंगे that is not morally right or ethically right, fundamentally right. कुछ भी right नहीं है. For example मतलब in the इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर 1857 का पहला विद्रोह जब हुआ, मंगल पांडे ने जब सोचा होगा कि आई हैव टू स्टार्ट ए क्या कहते हैं रिवोल्यूशन, आई हैव टू डू समथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म. अगर उसने स्टार्ट करने से पहले ये सोचा होता हो कि ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, और जो कि कहता है सन नेवर सेट्स अपॉन द ब्रिटिश एम्पायर, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सोचो the first spark of Indian revolution would have never happened. And पता नहीं अभी तक हम लोग आज़ाद हुए होते या नहीं हुए होते. तो fight is never fair. Fight is never fair. You fight because that's your dharma, because that's the only thing you got to do to protect yourself, your motherland, and all encompassing all people और जितने भी creatures हैं सबके लिए, everything. So young generation need not to be motivated with such comment. और वो बकचोदी करता है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ बकचोदी करता है, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सो डोंट फकिंग गेट इनटू दोस. एंड वो फिर इन रिसेंट कंट्रोवर्सी अगेंस्ट सीडीएस ओपन द्विवेदीज रिमार्क हैड कम कि हम लोगों ने पाकिस्तान पे हमला करना बंद कर दिया, वे स्टॉप
द अटैक ड्यूरिंग प्रेयर आवर्स। क्यों? तो क्योंकि सबका मालिक एक है भाई। द ऑपरेशन सिंदूर टुक प्लेस बिकॉज वन ऑफ द रीजन बिकॉज दे किल्ड योर सिविलियंस आस्किंग देयर क्या कौन सा रिलीजन है तुम्हारा, कौन सा धर्म है तुम्हारा, हाँ कौन वो ही मतलब उसका सोल किल करने का सोल वो उसका मोटिव ही था कि हाँ भाई हम हिंदुओं को मारेंगे। तो इफ समवन अगेंस्ट यू इज हाईली मोटिवेटेड, हाईली रेडिकलाइज्ड एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट देम एंड then CDS, the chief of defense staff, comes in an interview and says कि we stopped the attack when prayer was happening, और क्योंकि सबका मालिक एक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए सिनेरियो कि जब भी प्रेयर हो रहा होगा, कंसिडर कि सारे टेररिस्ट एक साथ एक जगह पे प्रेयर कर रहे होंगे। व्हाट वुड यू डू? तुम क्या सोचोगे? प्रेयर ख़त्म हो जाएगा, सब बिखर जाएंगे, तब एक को चुन के मारेंगे, कोई हमजा अली मुजारी पहुंच जाएगा उसको फिर से मारने के लिए? नहीं ब्रो, तुमको एनिमी को एलिमिनेट करना है तो यू नीड टू बी रूथलेस, यू नीड टू बी फकिंग रूथलेस, यू नीड टू बी रेडिकल इन योर आइडियाज, इन योर व्यूज, यू नीड टू बी रेडिकल, यू डोंट नीड टू गो वोक। अगर तुम्हारे स्टेटमेंट के पीछे कुछ ऐसा रीज़न, लॉजिकल रीज़न था तो यू डोंट स्पीक सच थिंग्स इन पब्लिक। क्या भाई ये लोग को मीडिया ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है क्या? DGS पे क्या करती है भाई? इफ़ CDS इज़ गोइंग इनटू इंटरव्यू तो तुमको देखना चाहिए ना कि हाँ भाई क्या लिस्ट ऑफ सवाल्स दे आर गोइंग टू आस्क, एंड उसके हिसाब से उनको प्रेप करना चाहिए कि व्हाट पॉलिटिकली राइट और व्हाट क्या कहते हैं मतलब इन सेंस कि भाई ब्यूरोक्रेटिक वे में कैसे राइट हो सकता है, डिप्लोमेटिकली इतना आंसर कितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकता है। आप अपना जाके हार्ट आउट ऐसे करके जाके बोल नहीं देते हैं। मानते हैं कुछ रीज़न रहा होगा आपके कहने के लिए, बट नोबडी नोज द रीज़न आपके हार्ट में क्या था, वो क्या था क्या नहीं था। तो पीपल सिटिंग ऑन द हाईएस्ट चेयर शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग दिस स्टेटमेंट्स भाई, इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद वो सिंगापुर में कहीं पे कोई क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे भी गया था। तो वहाँ पे भी जाके बोल दिया कि जब पूछा गया कि हाउ मेनी जेट्स वे डाउन, तो इन्होंने बोला कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ वॉर। अब उसके अगेंस्ट में जो मोबिलाइज हुआ, सारे फॉरेन के जितने फॉरेन इन केस की वो पाकिस्तानी वाले जितने रेडिकल मुल्ला से जो भी बैठे हुए हैं, वहाँ के जो भी IT सेल में बैठे हैं, ISPR में जो भी बैठे हुए हैं भाई, उन्होंने उसको इतना ट्विस्ट किया, 7 फाइटर जेट गिरा दिए, ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया। भाई लॉसेस है, मानते हैं लॉसेस है, हर एक वॉर में पार्ट ऑफ लॉस है भाई। तो तुमको ये नहीं कहना ना कि इफ़ यू आर आस्क्ड सम क्वेश्चन तो यू हैव टू बी डिप्लोमेटिकली राइट। तुमको बताना है या नहीं बताना है? नहीं बताना है तो कुछ नहीं बोलना है, हिंट भी नहीं देना है। अगर बताना है तो सारा बताना है कि हाँ भाई इतने फाइटर जेट गिरे, इतने नहीं गिरे, इतने आदमी मरे, ये पकड़ा वो नहीं पकड़ा, ठीक है। वही तो कह रहा है, इन लोग का मीडिया प्रेपिंग नहीं होता है क्या? यू आर सिटिंग इन द हाईएस्ट ऑफ द चेयर भाई, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, तुम्हारा कोई मीडिया प्रेपिंग ही नहीं है। तुमसे क्या सवाल पूछा जा रहा है उसके पास तुम्हारा आउटलेट ही नहीं है, तुमको क्या सवाल देना है, तुम्हारा कोई मीडिया प्रेपिंग ही नहीं है, तो कर क्या रहा है भाई? एंड देन अगेन एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट भाई, ये पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान इधर ईरान US और इजराइल के वॉर में मीडिएट कर रहा है। ओके, मीडिएट कर रहा है। जनरल एम ई जयशंकर का स्टेटमेंट आया कि वी आर क्या कहते हैं नॉट ए दलाल नेशन। हाँ ओके, इट्स ओके, ठीक है, तुमको मीडिएट नहीं करना है, अपना तुम्हारा इंटरेस्ट है, ठीक है। पर ये वाला इनके इसमें ये जियो पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं इसमें पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। ये इसमें ये है ना कि देयर इज़, जब इज़राइल इन्वॉल्व है तो until and unless Israel is on the table, there is no deal. ये remember it कि until and unless Israel comes into the table, there will be no deal. गाजा पीस बोर्ड बना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इजराइल बोर्ड में ही नहीं है तो कौन सा गाजा पीस बोर्ड है भाई? इजराइल पीस टॉक चलने के पहले वो मतलब इजराइल पॉन्डेड हार्ड टू लेबनान,
उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, ईरान बोल रहा है कि नहीं लेबनान पे, ये भी बात हुआ था कि लेबनान पे नहीं करेगा अटैक, ऐसे वैसे 3, 13, 14, 17 नहीं। सिम इट इज़ वेरी क्लियर एंड सिंपल कि अनटिल एंड अनलेस इजराइल इज़ ऑन द टेबल देयर विल बी नो डील। यूएस ऐसे, वो ट्रम्प को लगता है कि हाँ हमने इतने इतने वॉर ख़त्म कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, मैं फिर से ऐसे मैं कोई ऐसे वॉर में घुस जाऊँगा। हाँ घुसना भी था क्योंकि इसराइल कैन नॉट टेक ऑल ऑफ इट, तो वो यूएस को घुसना ही था। तो वो घुस के वो सोचेगा कि हाँ मेडिएट करके फिर से उसको नोबेल पीपल वर आस्किंग नोबेल पीस प्राइज फॉर व्हाट, क्या कहते हैं ये नवाज शरीफ, अरे भाई उसका फेवरेट जनरल आसिम मुनीर है। इट्स ओके जो भी होता है जियो पॉलिटिक्स में, इट इज़ ऑल ओके। तो जियो पॉलिटिक्स में कहने का ये बात है ना कि अनटिल एंड अनलेस देयर इज डील विथ इजराइल, तो यूएस कितना भी उछले देयर विल बी नो डील। इसराइल वो डील हुआ उसमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का हुआ बात कि हाँ नहीं क्या कहते हैं ऐसे वैसे, तो उसमें भी एग्री नहीं किया ईरान। क्यों ही करेगा ईरान, तुमको करना तो तुमको एक झटके में सब चीज़ ख़त्म कर देना चाहिए, यू डोंट नीड टू गो इन टू टॉक्स। पर वही है ना, ईरान के पास लेवरेज है, दे हैव लेवरेजेस। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनर्जी सप्लाईज आते हैं दैट कम्स थ्रू दैट पासेस थ्रू ईरान, देयर इज़ अ स्टेट और हार्मोज देयर विच he started to block it and later on क्या कहते हैं उसके बाद अभी रिसेंट में somebody said कि वो उन्होंने क्या कहते हैं मरीन वो क्या है उसका मरीन माइंस लगा दिए हैं एंड दैट इज़ हार्ड टू डिटेक्ट भाई। तो अब कोई भी शिप उड़ता है तो वॉर क्राइम होगा। वॉर क्राइम के यूएस और इजराइल वॉर क्राइम कर ही रहे हैं इतने बार से, अब कोई वॉर क्राइम हुआ नहीं तो ईरान कर देगा तो कौन सा ही वॉर क्राइम हो जाएगा। एंड ऑफ ऑल दिस थिंग्स शेखर गुप्ता वाज देयर इन पोस्टेड एन आर्टिकल ऑन प्रिंट की बंगाल से इंडिया की डेमोक्रेसी वो हो रही है, ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। भाई दिस वुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अमेरिका एंड इसराइल कि वो क्या कर रहे हैं, उससे डेमोक्रेसी पे असर पड़ रहा है। ये वेस्ट बंगाल इज़ इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ दोज नेशंस जिसके ऊपर इम्पेरियलिज्म इम्पोज किया जा रहा है एंड ऑल थिंग्स, तो उस पर कभी बोलेगा नहीं। इंडियन मीडिया ना भड़वा है। इंडियन मीडिया हैज़ so many content in the sense कि nobody has said कि India has saved world twice from economic downfall. Nobody. एक रसिया यूक्रेन वॉर में, एक ईरान यूएस इजराइल वॉर में, इंडिया हैज़ सेव्ड वर्ल्ड twice going into economic recession. They never talk about it. They never even posted an article. मतलब उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो मीडिया में, वो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में आएंगे, वो पीछे में वो ऐसे इधर से विमान जा रहा है उधर से विमान जा रहा है, भाव फम मुड़ गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, इधर से शिप जा रहा है उधर से शिप आ रहा है, बीच में ब्लॉकेड हो गया, ये सब करते फिरेंगे, अखंड बकचोदी पेलेंगे। पर ये नहीं, इंडिया का जो इंटरेस्ट है, इंडिया का जो स्टैंड पॉइंट है, दे विल नेवर फर्दर देयर नेशन इंटरेस्ट। तो थिंग इज़ कि इंडियन मीडिया इज़ भड़वा, दे डोंट हैव एन आयोटा ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड हाउ दे शुड लेवरेज इट इनटू द नेशन इंटरेस्ट। और क्या कहते हैं, NIV ने क्या ये TRP बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए जब से वॉर ऐसे चल रही थी, तो अभी TRP बंद किया है टेलीविज़न्स का। एंड इसको क्या कहते हैं, और इनको जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस समय इसको ध्यान नहीं आया कि वो TRP को बंद भी किया जाता है। वो बकचोदी जो दिखाते रहते हैं दिन भर साल भर वो दिखाते रहते हैं, उनको बंद करने के लिए उस समय नहीं आया। ये दूसरे देश में जब भी कुछ होता है ना, ये अपना है भाई, हम तो साधु हैं, हम तो संत हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है। भाई जब तुम्हारे पे आता है तो तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ चली जाती है? The only survival instinct in the world of geopolitics is being ruthless for your national interest, being ruthless for your national security. If anything comes in midst of that, उसके बीच में कुछ भी आए, that should not matter.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये होना चाहिए कि आपका नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी फोर फ्रंट पे है। तो वही है ना, मीडिया को ना नॉलेज है ना, मीडिया कुछ भी नहीं है। वो टू से वो भाई क्या इंडिया का कुछ, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मीडियोकर्स, फुल ऑफ मीडियोकर्स, where people celebrate mediocrity, where they award mediocrity, there is no scope for excellence. Excellence का कोई स्कोप ही नहीं है। और क्या ही, these all were the burning points of today, and whatever this is, I don't know how many of you are going to listen this, but ठीक है, it doesn't matter to me. I just wanted to vent out, and this platform is like venting out my day-to-day frustration going on into Indian politics, world politics and all. So hope if somebody listens to it, hope they like it, hope they understand my POV. I'm not trying to impose something on you. It is not imposing, it is my point of view. Yeah, you agree or you don't agree, it is upon you. It is totally upon you. So peace out.